So you can see that we are going to start today inverse trigonometric functions. Now to begin inverse trigonometric functions, there are certain concepts required. There are certain few concepts of class 11 which is required here. So let me start with that concept first. Because without knowing the concept of class 11, there will be, you'll face problem in class, doing these few questions, okay? And basically if you see in inverse trigonometry, you have only 20, not even 20%. Okay, let us consider 20% of the entire syllabus you have, which you have in the NCERT. Because most of the things are deleted. So the 90% of the things are deleted from the syllabus. But फिर भी अभी हम लोग स्टार्ट करते पहले क्लास 11 का कंसेप्ट है, तो ध्यान रखिए। Now सबसे पहला पॉइंट, suppose if you have, let's say, अच्छा सबसे पहला पॉइंट देखो, in the first quadrant, you all know that all functions are positive. All the functions are positive in the first quadrant. In the second quadrant, sine at its reciprocal function, which is cosec, these two functions are positive. In third quadrant, tan at its reciprocal, that is cot, these two functions are positive. And in fourth quadrant, cos at its reciprocal function, which is sec, these two are positive functions. These two are positive. अब देखो रेंज क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, इट इज 0 डिग्री टू 90 डिग्री. रेंज ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट इज 90 to 180 degree. Range of third quadrant is 180 to 270. Range of fourth quadrant is 270 degree to 360 degree. ये सबको पता है तो, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट. Now suppose if you have pi plus theta, or if you have 2 pi plus theta, or suppose you have 3 pi plus theta, 5 pi plus theta, 6 pi plus theta, and so on. ठीक है? इस तरह से मान लो बहुत कुछ हो सकता है. Now tell me everyone, if I want to express pi in the form degree, in degree form, can I write pi as 180 degree? And can I represent 180 degree as 2 into 90 degree plus theta? So अगर pi को मैं 2 into 90 plus theta लिख सकता हूँ, note down. अगर मैं pi को 2 into 90 plus theta लिख सकता हूँ, तो बताओ तो 2 pi को क्या लिख सकते हैं? pi को अगर 2 into 90, so 2 pi को क्या लिखा जा सकता है? 4 into 90. 4 into 90. 3 pi will be 6 into 90. All right. Then 5 pi will be 10 into 90. And 6 pi will be 12 into 90. Now one thing is very much clear, that if pi will be expressed as even into 90, so 2 pi will be also even into 90, 3 pi will be also even into 90, because if a number is even, and if through that number if you multiply odd or even anything, the result will be again even only. Because odd number into even is even, because even का मतलब क्या होता है? Anything which is a multiple of 2 is even. तो अगर मान लो 2 even है, तो इससे अगर मैं 3 मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट even ही होगा, और अगर मैं even मल्टीप्लाई करूं तो कोई बात ही नहीं. तो मतलब मैं ये बताना चाहता हूं तुमको सबसे पहला पॉइंट, कि अगर मान लो मैं सपोज पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, लेट्स से 4 पाई इन बिटवीन को अगर मैं एक्सप्रेस करूं n into 90 के फॉर्म में, तो 90 डिग्री के जो आगे जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, 90 डिग्री के आगे जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, दैट इज व्हाट? ऑलवेज इवन मल्टीपल ऑफ 90. इट इज ऑलवेज इवन मल्टीपल ऑफ 90. तो ध्यान से एक चीज नोट करना तुम लोग, अगर ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, सो व्हाट इज 2 into 90 plus theta? Can you tell me the quadrant? What is 2 Third into quadrant. 90 plus theta? It will be third quadrant. What is 4 into 90 plus theta? It's the first quadrant. First quadrant. Fourth quadrant. 6 into 90 plus theta is which quadrant? Third quadrant. Third quadrant. And what is 8 into 90 First plus quadrant. theta? So what you are observing, you are finding a pattern. What is that pattern? Pattern is so everyone note down. So what we are finding one pattern. What is that pattern? Note down. Ki odd into pi
देखो जहां भी ऑड इनटू पाई है, ऑड इनटू पाई प्लस थीटा है जहां भी, वहां पे हमेशा कौन सा क्वाड्रेंट है देखो एक बार, इट इज ऑलवेज थर्ड क्वाड्रेंट। दिख रहा है ना, देखो तो ऑड पाई समझ में ना मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा यहाँ पे बीच में ज्यादा मतलब गैप कर रहे तो दिख कम रहा होगा, देखना एक बार 1 पाई 3 पाई 5 पाई। सो ऑड पाई प्लस थीटा इज ऑलवेज व्हिच क्वाड्रेंट? Odd pi plus theta is always the third quadrant. And what is even pi plus theta? Even pi plus theta is always first quadrant. इस चीज को तुम लोग नोट करना, मतलब 2 pi 4 pi 6 pi 10 pi 8 pi कुछ भी 18 pi कुछ भी, वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। Odd pi plus theta will be always third quadrant. Is this clear to everyone here? अब देखो नेक्स्ट। Yes, sir. अब नेक्स्ट पार्ट देखना एक बार, अगर तुमको ये चीज समझ में आ गया ना तो मैं बता रहा हूँ तुमको बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, ध्यान देने का। नेक्स्ट, अब पॉइंट नंबर 2, सपोज यू हैव पाई माइनस थीटा और यू हैव 2 पाई माइनस थीटा और 3 पाई माइनस थीटा और वी हैव 4 पाई माइनस थीटा 5 पाई माइनस थीटा 6 पाई माइनस थीटा। now pi minus theta means 2 into 90 minus theta, 2 pi means 4 into 90 minus theta, 6 into 90 minus theta, 8 into 90 minus theta, 10 into 90 minus theta, and so on. Now just note down one pattern once again. Again you will find a pattern, just note down. See, 2 into 90 minus theta is always which quadrant? 2 by 90 Second quadrant. minus theta, मतलब इस लाइन के पहले वाला, मतलब ये कौन सा quadrant है? It is fourth quadrant. So 2 into 90 minus theta is fourth quadrant. Sir, I think this should be second quadrant. Sir, pi will be 180 degrees. I'm just sorry, very sorry. I'm sorry. मैं एकदम मतलब क्या किया मुझे नहीं पता। I'm sorry कि like 4 times मैं कैसे घुमा दिया। मैं actually इसको देख के चलिए दिमाग में ये चल रहा था और मैं देख ही रहा था, ठीक है। So just note down 2 into 90. 2 into 90 minus theta is which quadrant? Second quadrant. All right. What is 4 into 90 minus theta? It is fourth quadrant. So एक चीज देखो तुम लोग सीक्वेंस, अब आगे देखो 6 into 90 minus theta देखो एक बार, कौन सा क्वाड्रेंट होगा 6 into 90 minus theta? सेकंड क्वाड्रेंट। देखो 4 2 6 सेकंड क्वाड्रेंट। अब देखो यहाँ पे 8 into 90 minus theta फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये कौन सा हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड सो। मतलब तुम लोग एक पैटर्न वापस यहाँ क्या देख रहे हैं कि ऑड बाय माइनस थीटा इज ऑलवेज व्हिच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। तो एक काम करते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम लोग ऑड बाय माइनस थीटा, यहाँ क्या लिख देंगे 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ, 4 पाई माइनस थीटा फोर्थ, 6 पाई माइनस थीटा फोर्थ। मतलब यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग कि इवन पाई माइनस थीटा इज ऑलवेज फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब हम लोग एक पैटर्न देख रहे हैं यहाँ पे कि इवन पाई प्लस थीटा इज फर्स्ट, इवन पाई माइनस थीटा इज फोर्थ, ठीक है। देखो वर्टिकली जाओ, इवन और ऐसे याद रखने का तरीका है, इवन और प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो कितना आसान हो गया सबको सॉल्व करना, एक बार ध्यान दो। नाउ लेट मी बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट। सपोज इफ यू हैव साइन ऑफ 16 पाई प्लस थीटा, सपोज तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 16 पाई प्लस थीटा। इस कांसेप्ट को सबको प्लीज ध्यान से देखना, डोंट कॉपी, आई गिव यू टाइम टू कॉपी। देखो अगर मान लो बोला जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 16 पाई प्लस थीटा, अच्छा ये चीज तो याद है ना थोड़ा बहुत कि जब भी 90 डिग्री के आगे ऑड मल्टीपल हो तो फंक्शन चेंज होता है, और इवन इनटू 90 होता है तो याद है फंक्शन सेम रहता है। डू यू रिमेंबर दैट पार्ट क्लास 11 का? Yes, ऑड इनटू 90 means the function will change, but if it is even into 90 function will remain same. Now tell me one thing everyone, कि इस हर एक केस में जहां भी पाई के आगे ऑड हो या इवन हो, पाई के आगे ऑड हो या इवन हो, हर एक केस में 90 के अगर हम उसको n into 90 के फॉर्म में कन्वर्ट करें, so that n is an even number or an odd number? Tell me everyone. Even number. Always an even number. That is always an even number. Please note down. It is always an even number. So if it is always an even number, there is no question of changing the function. There is no question of changing the function. Means the function remains same with angle theta. Now the only thing we have to worry is the sign part. The only thing which you need to worry is what? The sign part. Whether the value will be positive or negative. And for this part, I have given you a very simple way. You can remember this. Even pi plus theta first, even pi minus theta fourth,
odd pi minus theta third second and odd pi plus theta third quadrant. Clear everyone? ये याद रहेगा. अब बताओ मुझे यहाँ पे even pi plus theta है तो कौन सा quadrant होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट. फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन फंक्शंस क्या होगा? पॉजिटिव. ठीक है, एक बार में आंसर आ गया. अब देखो मान लो सपोज you have got suppose let's say cos of 17 pi minus theta है. मान लेते हैं यहाँ पे 17 pi minus theta है और इसका तो माइनस cos थीटा. तो सबसे पहला चीज तुमको जब भी 17 pi 20 pi 40 pi odd pi even pi दोनों में जब हम उसको n into 90 के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे that will be always even into 90. When we will express in the form n into 90 that will be always even into 90. So function will remain the function itself. Write down the angle. The only thing to think is the quadrant part. Now tell me what is odd pi minus theta. Second quadrant में cos function पॉजिटिव होता है नेगेटिव. समझ में? बहुत सिंपल है ये तरीका. तो मैं चाहता हूँ पहले ये सब चीज कॉपी करके 1 and 2 कॉपी करो और देखो हम इसको कैसे यूज करेंगे इनवर्स ट्रिगो में सॉल्व करने के लिए. एक बार कॉपी करो फटाफट. Now everyone note down the next part. Now the next part which we'll be doing right now is you all know that if sin theta is p by h, what is theta equal to? It is equal to sin inverse of b by h and so on for the other functions. It is same for the other functions, that is theta will be cos inverse of b by h for cos inverse function and for tan inverse function it will be tan inverse of p by b. And we find that कि cosec function इस रेशियो का रेसिप्रोकल होता है, इस रेशियो का रेसिप्रोकल होता है, तो फिर इसका इनवर्स भी क्या होगा? थीटा क्या होगा? It will be cosec inverse of h by p. So I hope you can now understand कि यहाँ पे sec inverse क्या होगा. तो यहाँ पे sec inverse क्या होगा बताओ तो? क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ sec inverse of h by b और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ sec cot inverse b by p लिख सकता हूँ. Is this clear? Now एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का ये अगर मान लो इनवर्स, जैसे साइन का इनवर्स ये है साइन इनवर्स, तो मैं एक चीज बता दूं तुमको, बस एक बार ब्रीफ में कर दूं. तुमको पता होगा मैंने बताया था कि इफ अ फंक्शन इज 1 1 एंड मेनी 1, आई एम सॉरी 1 1 एंड ऑन 2, अगर एक फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 दोनों है तब जाके वो फंक्शन क्या होगा? इन्वर्टिबल होगा. ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक एलिमेंट का कोडोमेन में प्री इमेज एग्जिस्ट करता है. तो जब हम उसका इनवर्स लिखेंगे, f इज अ फंक्शन, तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा? उसका इनवर्स ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है, f इनवर्स. उसमें b हो जाएगा इसका डोमेन और a हो जाएगा उसका कोडोमेन. सो व्हाट वी आर फाइंडिंग कि अगर एक फंक्शन इन्वर्टिबल होना है तो फंक्शन को 1 1 एंड ऑन 2 दोनों होना पड़ेगा. नाउ माय क्वेश्चन गोस टू यू ऑल. What do you think about a trigonometric function? What do you think about a trigonometric function? Is sine function 1 1 and onto both? Is a sine function 1 1 and onto both? I don't think it is 1 1 and onto both. No, sir, it's not. Do you think? एक बात बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है? थोड़ा सा जल्दी से उब जाने, मतलब बोलते हैं ना इरिटेट हो जाने से नहीं होगा. थोड़ा दिमाग लगाना होगा, पेशेंस रखना पड़ेगा. क्या एक साइन फंक्शन trigonometric function 1 1 and onto Sir, for multiple values of theta, sine can have a similar value. Absolutely correct. Now एक बार ना पहले ये एक बार कॉपी करो, फिर हम वो चीज डिस्कस करेंगे. एक पार्ट बोर्ड वर्क में कराना, कॉपी करते हैं. Now everyone tell me, if we talk about a trigonometric function, let's say sine. Let me just write down codomain as R and domain as also R. Clear? Let me write codomain as R and domain as R. मतलब R मतलब कोई भी रियल नंबर. अब आप बोलोगे पाई बाय 2 क्या है? तो ऑब्वियसली रियल नंबर है. पाई क्या है? रियल नंबर है. 3 पाई क्या है? रियल नंबर है. माइनस 3 पाई बाय 2 क्या है? ये सब रियल नंबर है. अब एक बात बताओ,
तो बहुत सारे नंबर्स, यहाँ पे भी -5 है, 6, बहुत सारे नंबर्स। यहाँ पे रियल नंबर्स मतलब बहुत सारे नंबर है, यू कैन नॉट काउंट रियल नंबर्स एक्चुअली। नाउ टेल मी एवरीवन, ऐसा तुमको नहीं मिलता है कि sin 0 का वैल्यू भी 0 होता है और sin पाई का वैल्यू क्या होता है, कैलकुलेट करो वो भी 0 होता है, sin 2 पाई का वैल्यू कैलकुलेट करो तो वो भी 0 होता है। मतलब एक चीज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर रियल नंबर्स तो बहुत सारे नंबर्स, तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे पाई, It is a many 2 one पाई, function. 3 पाई, मतलब बहुत सारी चीज का एक ही आंसर है, एक ही आंसर आना है कि नहीं? इसके हिसाब से तो ये फंक्शन का जो इनवर्स हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री हो गया फंक्शन, उसका इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं, तब तो गलत पढ़ रहे हैं। जस्ट अ मिनट, एक सेकंड, अभी कोई आंसर नहीं है, हम लोग गलत पढ़ रहे हैं इसका मतलब। लेकिन मैं एक मिनट, एक और चीज बता दूं, एक और चीज, एक बात बताओ तो यहाँ पे रियल नंबर्स में क्या सारे रियल नंबर्स का ही प्रीमेज है? तुम व्हाट डू यू No, वांट sir. किस किस रियल नंबर्स का प्रीमेज है पता है? Sir, only numbers between -1 and +1. एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज़ साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या आता है, क्लास 10 से पढ़ते हैं ना तुम, 1, और मिनिमम वैल्यू क्या आता है, क्या आता है मिनिमम? -1। कॉस का -1 to मिनिमम भी +1. -1, और रियल का, सॉरी रियल बोलते हैं, tan का रियल नंबर्स, मतलब रियल का बोलते हैं, tan फंक्शन का क्या होता है, ऑल रियल नंबर्स। तो व्हाट वी आर फाइंडिंग कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ -1 से लेके 1 तक का ये जो नंबर्स है, रियल नंबर्स, ये उसी का प्रीमेज है, बाकी किसी नंबर्स का प्रीमेज नहीं है। सिर्फ किस नंबर्स का प्रीमेज है बताओ तो? -1 से लेके और 1 तक सारे नंबर्स का ही प्रीमेज है, और किसी भी नंबर्स का प्रीमेज नहीं है। तुम अगर बोलोगे कि 2, तो गलत है, 2 का कोई प्रीमेज ही नहीं होता। तुम ऐसा कोई यहाँ पे वैल्यूज ही नहीं सोच सकते हो थीटा का फॉर व्हिच द आंसर विल बी 2, ऐसा होता ही नहीं। मैक्सिमम क्या होगा 1, मिनिमम क्या होगा -1, और क्या होगा उसके बीच का कोई भी वैल्यू। और हम क्या देख रहे हैं कि पाई पे भी आंसर 0, 2 पाई पे भी 0, 3 पाई पे भी 0, 3 पाई पुट करो 0 है, तो ये मेनी वन है कि नहीं? तो इसके हिसाब Yes, से sir. तो ना ये 1 फंक्शन है और ना ही ये ऑन टू फंक्शन है, फिर भी ये फंक्शन का हम लोग इनवर्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। एक्चुअली हम लोग इस चैप्टर का इनवर्स पॉसिबल बना रहे हैं, इस चैप्टर का इन ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स पॉसिबल बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? लेट मी फॉरवर्ड यू वन टेबल, एक मैं तुमको इमेज भेजता हूं, वो टेबल एक बार तुम लोग सबको देखो, सबको कंसंट्रेट करना, मैं भेज रहा हूं एक टेबल, जस्ट अ मिनट, इट्स देयर इन द एवरी बुक यू फाइंड। मैं एक बार वो टेबल फिर भी अभी भेज रहा हूं, देखना एक बार। हम लोग उसका एक्चुअली इनवर्स नहीं, अगर हम देखें इतना सीधा सीधा देखें तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनवर्स का क्राइटेरिया ही नहीं सैटिस्फाई कर रहा है। क्राइटेरिया क्या होता है कि वो फंक्शन 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, है कि नहीं? तो यहाँ पर जब हम इसका इनवर्स लिखेंगे ना, तो प्रॉब्लम क्या होगा पता है, यहाँ पे होगा ही नहीं, फंक्शन का क्राइटेरिया ही सैटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि -1 से लेके हर एक नंबर्स का यहाँ पे इमेज होगा। और कैसा इमेज होगा पता है, इट विल बी ये एक नंबर का बहुत सारा इमेज, बहुत सारे इमेजेस है, मतलब ये क्या हो जाएगा पता है 1 2 3। मतलब आई थिंक ये तो क्लियर है ना फंक्शन में, कि एक फंक्शन अगर 1 1 और ऑन टू ना हो तो वो फंक्शन कभी भी इनवर्टिबल नहीं होता है कि नहीं? ये पता था कि नहीं तुम लोग? तो ये फंक्शन को इनवर्टिबल पॉसिबल क्यों, कैसे बना रहे देखना एक बार। वी आर मेकिंग इट इनवर्टिबल बाय restricting the domain. You cannot restrict range. By restricting the domain, and we are restricting the domain of this function from -π/2 to π/2. There are other intervals also we can restrict within that. I repeat, मैं और भी बहुत सारे इंटरवल्स में इसका हम डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके, और हम बोलेंगे कि नहीं हम बाकी को नहीं लेंगे, हम इसका डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, सारा रियल नंबर्स नहीं लेंगे। हम इस फंक्शन का इनवर्स को पढ़ने के लिए क्या कर रहे हैं, हम एक सेट ले रहे हैं A, जिसका मैं डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दे रहा हूं -π/2 से लेके π/2 तक, और इसका मैं जो रेंज है, इसका जो कोडोमेन है वो भी मैं रेस्ट्रिक्ट कर दे रहा हूं -1 से 1 तक। अब बहुत बढ़िया है, क्या बढ़िया हो गया, अब ये -π/2 से π/2 तक में ये 1 1 भी हो गया। तुम देखना -π/2 से π/2 तक के बीच में ऐसा कोई भी दो एंगल्स नहीं होगा जिससे इसका एक ही इमेज फॉर्म होगा। -π/2 पे -1 आएगा, चेक करो, या -π/2 पुट कर लो, आंसर -1 आएगा। π/2 पे 1 आएगा, 0 पे 0 आएगा, 60 पे √3/2 आएगा, -60 पे -√3/2 आएगा। मतलब अब क्या हो गया, हम लोगों ने इस फंक्शन का डोमेन को और कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। क्या बना दिया पता है, इसका बना दिया -π/2 to π/2, और इसको बना दिया मैंने
-1 to 1, यहाँ तो खैर ऑप्शन भी नहीं है यहाँ तो, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे ऑप्शंस हैं, नॉट ओनली दिस इंटरवल, देयर आर अदर इंटरवल्स आल्सो। तुम अगर ग्राफ बना के देखोगे कि और भी इंटरवल है जिसपे हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो जो, लेकिन क्या सोचा गया, तो बहुत पहले इस चीज को बनाया गया था, तो क्या उसने सोचा है कि एक काम करते हैं, इसको एक ही इंटरवल पे रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, नहीं तो मेरा हम कुछ और इंटरवल पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, तुम कुछ और इंटरवल पे पढ़ोगे, कुछ और इंटरवल पढ़ोगे, सब राइट है, रॉन्ग कोई नहीं है। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ, सब कोई राइट है, लेकिन हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने नहीं मतलब जिन्होंने बनाया वो क्या किया कि इसको जो है एक इंटरवल पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि चलो एक काम करते हैं, सबको ही हम लोग पूरी दुनिया में हम लोग साइन का डोमेन को ये और कोडोमेन को ये करके रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं इसमें, तो इसमें ये 1 1 भी है और ऑन 2 भी है, और इसका भी इन्वर्स पढ़ते हैं। तो जब इसका इन्वर्स पढ़ना चालू हुआ, इसका इन्वर्स पढ़ना चालू हुआ, तो ये हो गया साइन इन्वर्स एक्स इस फंक्शन का। इसीलिए डोमेन देखो टेबल में क्या लिखा हुआ है, -1 to 1, और रेंज क्या लिखा हुआ है, लिखा है देखो, तो एक बार देखो, अभी जो मैंने फॉरवर्ड किया लिखा है, तो मैंने एक चीज एक्सप्लेन किया, बाकी सब इसी तरह से लॉजिक फॉलो होता है, मतलब इसी तरह से forward बाकी anything, sir. I forwarded that. Just that day I forwarded in your group. Today I have not forwarded in your group. Just a minute. And you need to learn this by heart. बोलते ना एकदम एकदम लर्न कर लेना, मतलब लॉजिक तो समझ में आ गया, लेकिन इसको लर्न कर लेना, क्योंकि इसके बिना तुम्हारा नहीं हो पाएगा। समझ में? तो हम लोग ने क्या किया, रेस्ट्रिक्ट करके, और अब देखो सबको टेबल फॉलो करो। तो बताओ तो साइन इनवर्स का डोमेन क्या है, देखो एक बार बताओ टेबल क्या है, बताओ डोमेन क्या है, -1 से लेके 1, मतलब हम x के जगह पे साइन इनवर्स फंक्शन में अगर हम x के जगह पे अगर हम बोलते हैं कि 4 नहीं पॉसिबल, 1 पॉसिबल है, -1 पॉसिबल है, साइन इनवर्स 3/4 ये भी पॉसिबल है, 0 पॉसिबल है। अब इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर रेंज क्या होता है बताओ तो, रेंज इज कॉल्ड सेट ऑफ आंसर्स, डोमेन इज कॉल्ड सेट ऑफ इनपुट। फंक्शन में जो इनपुट डालते हैं हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वो वाले सेट को क्या बोलते हैं, डोमेन सेट। और वो डालने से जो इमेज फॉर्म होता है, मतलब आंसर, इमेज मतलब क्या होता है, जो डाल रहे फंक्शन में उससे जो इमेज आता है, जो आंसर आता है, उस सेट को क्या बोलते हैं, रेंज। तो रेंज सेट ये है, ठीक है। बताओ तो cos इनवर्स फंक्शन का डोमेन क्या है, बताइए तुमको, -1 to, और उसका रेंज क्या है, 0 to पाई। मतलब कुछ ग्राफ ऐसा है जिसके बारे में पता चलेगा तुमको कि 0 और पाई, फिर वापस पाई के बाद एक इंटरवल आएगा। मतलब इतना डिटेल में भी मत जाओ, जितना हम समझाए बहुत है, इतना एकदम सिंपल भाषा में जो समझा दिया मैंने, इट इज आई मीन इट इज नॉट रिक्वायर्ड मोर देन दैट। तो इसको क्या किया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया 0 to पाई के रिलेशन, क्योंकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, नॉट ओनली साइन, इज नॉट एट ऑल 1 1 एंड मिनिमम, इट्स अ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक मतलब एक इंटरवल के बाद वापस से जो है उस इंटरवल से सेम वैल्यू आना स्टार्ट हो जाता है। तुम देखा होगा कि क्या एक ही वैल्यू tan sin cos पे आंसर सेम आता है, सेम इमेज आता है, नहीं, बहुत सारे वैल्यूज पे है कि नहीं। अगर हम बोले 1 तो tan क्या एक 45 डिग्री पे 1 आता है, नहीं, बहुत सारे वैल्यूज पे 1 आता है, बहुत सारे एंगल्स पे 1 आता है। तो कोई भी नहीं, सिर्फ साइन ही नहीं, tan cos, सिमिलरली उसका रेसिप्रोकल जो है sin sec cosec और cot, ये सारे फंक्शंस ही को हमको रेस्ट्रिक्ट करना होगा इसका इनवर्स को पढ़ने के लिए, तब जाके आज हम लोग पढ़ पा रहे हैं द चैप्टर कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो ये टेबल याद रखना। अब देखो cos इनवर्स का ये है, tan का देखो ऑल रियल नंबर्स है, cosec का क्या है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट, क्या बताओ तो, cosec का ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1, व्हाट डू यू मीन बाय ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1, मतलब सारे रियल नंबर्स हो सकता है, लेकिन -1 और 1 के बीच का नंबर्स नहीं, उसके बीच का -1 भी नहीं। I think you understand the meaning of this interval, this bracket and this bracket, सबको क्लियर नहीं है? इस ब्रैकेट का मतलब होता है -1 and 1 is not included, but all the numbers within this are included. इसका मतलब होता है -1 is included, 1 is included, and all the numbers between that is included. तो यहाँ बोल रहे हैं all real numbers except this, का मतलब क्या? मतलब हम रियल नंबर्स में सारे रियल नंबर्स ले सकते हैं, लेकिन -1 और 1 के बीच का नहीं ले सकते। समझ में? तो ये तुम्हारा इसका डोमेन, और रेंज क्या है, इट इज -π/2, π/2 एक्सेप्ट
except one number that is 0. तो ये ध्यान रखना। Sir, हाँ, so in cosec inverse x, the domain we are using curved brackets, but in sec inverse x we are using box brackets. Or why is that? I have not understood. Tell me. Curly bracket. Sir, in cosec inverse x we use curved bracket for r minus minus 1 comma 1, and in sec inverse x we are using box brackets. No, So why is that? obviously मतलब ये अलग अलग है। sec इनवर्स में तुम्हारा होगा -1,1 को हटा के, ये सारे नंबर्स को हटा के, ठीक है, sec इनवर्स में मतलब दोनों का एक रीजन नहीं है, दोनों का एक रीजन मतलब बिकॉज कोसेक इनवर्स फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 and 1 यानी क्लोज ओपन ब्रैकेट, और sec का क्या है -1 and 1 छोड़ के और उसके बीच का भी सारा नंबर छोड़ के। एक बार ये कॉपी करो फटाफट। And for this, let me use one graph. Okay, let me use this app called Desmos. Just a minute. मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक ग्राफ से Desmos बोल के ग्राफ होगा, ऐप है ग्राफ का, उससे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। Is this clear, Shubham? It will be more clear. But for this, I have to share the screen, and for that, I have to turn off the board. So that will be doing it later on. Okay, don't worry. But फिलहाल के लिए तुम ये सोचो कि ये डोमेन है, ये रेंज। इसका मतलब क्या, मैं समझा दूँ एक बार। इसका मतलब this means all numbers between -1 and 1, and this means all numbers from -1 to 1. So if the question is all real numbers except this, means from real numbers we have to exclude what? Numbers which is greater than -1 and less than 1. And here we have to include also -1 and 1 and all the numbers between -1. Okay, तो ये, पर अब हम उसको ग्राफ से समझा देंगे, don't worry. There is a graph called Desmos, okay, app, okay, and using that app I'll be explaining you graphically, so that will be more clear, तुमको समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डोमेन का मतलब समझ में आ गया, रेंज का मतलब समझ में आ गया। अभी तुमको ये भी समझ में आ गया कि हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाकई में 1 1 मिनिमम सॉरी 1 1 और 2 होता नहीं है, बट फिर भी हम लोग उसको बना के एक इंटरवल दे करके कि ये इंटरवल पे ये 1 1 और 2 है, और उसके बाद हम लोग इसका इनवर्स पर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, नाउ टेक आउट योर PDF and just note down the few things which I am explaining. अच्छा, फॉर्मूला तो है ना सबके पास? फॉर्मूला है सबके पास? फॉर्मूला PDF वाला, नहीं PDF वाला नहीं, फॉर्मूला 12 का अच्छा, मैं भेज रहा हूँ। Sir, can you once send the inverse trigo PDF also? See, I have sent to the check once. Now let's start. फॉर्मूला वाला भी एक पेज भेज दिया मैंने, देखो हाथ से जो लिखा हुआ है। अब देखो ध्यान से। Now let's start with the first question, that is find the principal value. Principal value means you have to always keep in mind that the answer should be within the defined domain and range. मतलब जो डोमेन एंड रेंज है उसके बीच में आंसर होना चाहिए, ना भी बोला जाए तो भी आंसर उसके बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, सबसे पहला सवाल, ये सब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि sin इनवर्स ऑफ sin x is x, ये सब तो याद है ना। cos इनवर्स ऑफ cos x is also x, then sin of sin इनवर्स x is x, ये सब तो पता है ना। Yes sir, इतना तो बेसिक लेवल का चीज बताने की जरूरत नहीं। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो सबसे पहला सवाल, we have sin इनवर्स ऑफ 1/√। अब बताना 1/√2 sin के किस एंगल का वैल्यू होता है, तो ये 45 डिग्री। देखो सोचने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकते थे, but you have to think that value which lies in the minus range 5 of by sin 2 by inverse. plus 5. What is the range of sin inverse? तो मतलब सीधा सा बात है, मतलब इसके बीच में एक ऐसा वैल्यू बताओ जिसका आंसर 41/√2 होता है। So it is clearly sin 45 डिग्री। तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से पहले सोचो। अब बताओ मुझे कि sin इनवर्स ऑफ sin x क्या होता है? x होता है, बट याद रखना ये x हमेशा चेक कर लेना कि क्या ये sin इनवर्स फंक्शन का रेंज में बिलोंग कर रहा है, बिलोंग, ये हमेशा चेक करना।
Next. Now let me take one more question. Where you have suppose cos inverse of, let's say we have cos inverse of minus root 3 by 2. Now tell me what is cos inverse of minus x. Please check the formula copy and then answer me. What is cos inverse of minus x? Pi minus cos inverse x. It is pi minus cos inverse x. Now tell me what is root 3 by 2 equals to cos of which angle? The 30 degree. 30, that is pi by 6. What is cos inverse of cos pi by 6? Pi by 6, that is 5 pi by 6. Now tell me everyone, हम लोगों ने cos inverse function को solve किया, आंसर क्या है 5 pi by 6. Now tell me whether 5 pi by 6 belongs to the range of this cos inverse function or not. Yes, it is clearly in the range. Why? Because 5 pi by 6 is 150 degree and this is what 0 degree to 180 degree. So clearly इनके बीच में line है. So मैं सब देखो clear है? अब देखो next. मैं पहले 2-4-5 सब में कराया था फिर तुम लोग कॉपी करना ठीक देखिए. Now let's see number 2. Find the value of. The first question is sine of cos inverse 4 by 5. This is the first question. What is the question? It is sine of cos inverse 4 by 5. Now अगर ये sine होता और ये sin inverse 4 by 5 होता तो खत्म खेल खत्म मतलब 4 by 5 is the answer. But क्या यहाँ पे हम डायरेक्ट 4 by 5 लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख पा रहे बताओ तो? क्योंकि ये sin फंक्शन है और ये क्या है? Cos inverse 4 by 5. I repeat, ये sin फंक्शन और ये क्या है? Cos inverse 4 by 5. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? So we will convert it to a triangle. इस पे इसको हम ट्रायंगल पे इस इंफॉर्मेशन को ट्रायंगल पे रिप्रेजेंट करेंगे. Because sin of an angle, what is that angle? It is cos inverse 4 by 5. This is P, this is B, and this is H. Cos inverse is the ratio of what? Base by hypotenuse. So by Pythagoras theorem, what will be perpendicular? Root 5 square minus 4 square. Alright, ये तो क्लियर है ना सबका. अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है साइन इनवर्स में. तो साइन इनवर्स में अगर हम कन्वर्ट करें तो साइन इनवर्स क्या होता है 3 by 5. व्हाट इज साइन ऑफ साइन इनवर्स 3 by 5. क्लियर है व्यू? तो एक काम करें फटाफट 3 सा कॉपी करो. तुमको पीडीएफ से सिर्फ 3-4 नंबर तक ही करना है. उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन देंगे. अच्छा ये तो क्लियर है ना सबके का कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मैं बात कर रहा हूं कि cos of minus theta is cos theta and sec of minus theta is how much sec theta. इनके अलावा बाकी सब में ये जो माइनस साइन है वो आगे क्या आ जाता है मल्टीपल फॉर्म में आ जाता है. पता है ना ये चीज तो. बट ये चीज अलग है और इनवर्स ट्रिगो का अलग है. इनवर्स ट्रिगो के अंदर अलग चीज होता है. इसमें क्या होता है बताओ तो? कोसेक के अंदर क्या होता है? कोसिन सॉरी cos इनवर्स के अंदर क्या आता है? पाई माइनस हो जाता है. और किस किस के अंदर पाई माइनस आता है? Sir, cos cot inverse. It is cos inverse, sec inverse, and cot inverse. Am I correct? Cos inverse of minus x is pi minus cos inverse x. Sec inverse of minus x is pi minus sec inverse x, and cot inverse of minus x is pi minus cot inverse x. बाकी में माइनस आगे आ जाता है. और इसमें क्या होता है? कंफ्यूज नहीं हो रहा ना तुम लोग? मैं क्या बोल रहा हूँ? ये इनवर्स फंक्शन सॉरी फंक्शन है और इसका इनवर्स का बना है. इनवर्स में 3 चीज होता है. sec, cos और cot एक कैटेगरी में आते हैं जिसमें पाई माइनस हो जाता है. और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है? ये दो एक कैटेगरी में आते हैं जिसमें माइनस एलिमिनेट हो जाता है. अब देखो नेक्स्ट. Now let me just solve one sum that is number 7. 2 का 7. Now what is sin inverse of minus x? सबसे पहले sin inverse of minus x क्या? Minus sin x. देखो हमेशा किसी भी इनवर्स फंक्शन का अगर रेशियो नेगेटिव होगा तो पहले उस नेगेटिव को हटा. ठीक है तो बताओ तो sin इनवर्स ऑफ माइनस x क्या होगा? माइनस sin इनवर्स. अब बताओ व्हाट इज cos ऑफ माइनस थीटा? I minus cos inverse theta. नो Oh, no, minus. What is cos of minus theta? What is cos of minus theta? Cos theta.
अब देखो 3/5 है, साइन इनवर्स 3/5, इसको ट्रायंगल में रिप्रेजेंट करो। cos inverse 4/5. आंसर क्या हो गया 4/5। ठीक है, तो 2 के अंदर जितना सम्स है और 1 के अंदर जितना सम्स है एकदम ऐसे ही। ठीक है, अब देखो 3 नंबर देखना है, ये बहुत बढ़िया है। 3 नंबर ध्यान, देखो पहला सम। अब बताओ एक बार सब कोई कि व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। एक्स होता है ना, लेकिन ये क्या है बताओ तो, साइन इनवर्स फंक्शन। साइन इनवर्स फंक्शन का रेंज क्या होता है? माइनस रेंज साइन इनवर्स का मैं पूछ रहा हूँ। -π/2 through π/2. चेक करो एक बार वो टेबल। साइन इनवर्स फंक्शन का रेंज क्या है? -π/2 टू π/2। ठीक है, -π/2 टू π/2। सो साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3 इज π/3। बट क्या ये साइन इनवर्स फंक्शन के रेंज में बिलोंग कर रहा है? हाँ बिलोंग कर रहा है। लेकिन एक सम देखना नंबर 5। चलो 7 ले लो। cos इनवर्स ऑफ cos 13π/6। एक बार ध्यान देना सबको। अच्छा एक बात बताओ, सुनना एक बार, पहले यहां सुनो क्या होगा। cos इनवर्स ऑफ cos x क्या होता है? x होता है, तो इसकी इस लॉजिक से x होना चाहिए। लेकिन क्या ये x बिलोंग कर रहा है 0 टू पाई के बीच में? No, cos sir. इनवर्स के रेंज में। देखो तो बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। ठीक है, और ये 0 टू पाई के रेंज में ही बिलोंग नहीं कर रहा है, बिलोंग नहीं कर रहा है। मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। ये मत सोचना कि हमने तो तुमको पता है कि cos इनवर्स ऑफ cos x x होता है, तो यहाँ पे भी आंसर x होगा। लेकिन तुमको देखना तो पड़ेगा ना कि क्या ये रेंज में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। ये रेंज में बिलोंग नहीं कर रहा। अब इसमें क्या करना है ध्यान से देखो। 2π + π/6. एक सेकंड, इसमें क्या करना है देखो एक बार। सबसे पहला पॉइंट 13/6 को अगर मिक्स फ्रैक्शन में तुमको बोले रिप्रेजेंट करने के लिए, सो 13/6 को मिक्स फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करो तो क्या है? 2 1/6. क्लियर? इसको एक काम करो, अब इसको क्या मैं 2 + 1/6 लिख सकता हूं? चेक करो। Yes, sir. कर क्या रहे हैं? 6 2 12 + 1, 6 2 12 + 1, यही तो ना, तो दोनों बराबर है। अब बताओ मुझे 13/6 को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो 13π/6 को 2π + π/6. 2π + π/6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे cos 13π/6, इसको रफ में क्या करना है? 2π + π/6 ले लो, क्योंकि 2π + π/6 इज सेम एज 13π/6। अब बताओ cos, अभी मैंने बताया था ना ये चीज, लॉजिक बताया था ना कि 2π 3π 4π जो भी है उसको जब हम n × 90 के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो n हमेशा क्या होगा? इवन। आंसर इसका हमेशा क्या होगा? cos π/6 होगा। अब बस मुझे एक ही चीज का ध्यान रखना है, क्या पता है? और क्वाड्रेंट का। नाउ टेल मी इवन पाई प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? याद है ना वो रूल? इवन इवन ऑड ऑड, प्लस माइनस। तो यहाँ पे प्लस इवन पाई प्लस थीटा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos फंक्शन क्या होता है? फर्स्ट। तो क्या मैं 13π/6 को डायरेक्ट cos π/6 लिख सकता हूँ? व्हाट इज cos इनवर्स ऑफ cos π/6? क्या ये बिलोंग कर रहा है 0 टू पाई के बीच में? क्लियर? इजी है, समझ में आया? तो एकदम बहुत आसान है। अगर तुमको तुम्हारा बेसिक कांसेप्ट अगर क्लियर है तो बहुत इजीली सॉल्व होगा। ठीक है ना? किसी को कोई डाउट नहीं है? एक और मैं सम सॉल्व करता हूं, ध्यान। Note down. Question number 5. And the question is sin inverse of sin 5π/6. ठीक है, क्या लिखा हमने? sin inverse of sin 5π/6. Now total है। अब एक बात बताओ, sin inverse of sin x क्या होता है? कॉपी मत करना। क्या होता है? x होता है। लेकिन क्या ये x बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में? क्या इस रेंज में बिलोंग कर रहा है? देखो तो एक बार देखिए, क्योंकि ये हो गया तुम्हारा -90 to 90, ये क्या हो गया बताओ तो? 150। 150 इज नॉट लाइंग बिटवीन दिस इंटरवल्स, ये गलत है, ये हो नहीं सकता आंसर। तो हम क्या करेंगे? sin 5/6
अब देखो sin 5/6, अब 5/6 को इतना जैसे मैंने भी लिख दिया ना समथिंग 5 प्लस, यहाँ पे प्लस नहीं फॉर्म में आ पाएगा क्योंकि तो 5 minus 5/6 5/6. है, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ पाई माइनस 5/6, क्योंकि देखो 5/6 है तो दिमाग लगाओ 6 1 जा 6 होता है, तो वो तो 6 भी नहीं, मतलब 5 6 से छोटा है, तो एक काम करते हैं ना 6 1 जा 6 -1, समझ में बात मैंने क्या की? देखो 5/6 को थोड़ा सा अलग अलग तरीके से सोचो, 5 तो 6 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं है, ऐसा एक नंबर लो कि जस्ट वो 5 से एक्सीड करे। कौन सा नंबर 6 में 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट 5 को एक्सीड करेगा 1, और 6 1 जा 6 हो गया, क्या माइनस करने से 5 हो जाएगा -2। आई थिंक समझ में आएगा ना, इस तरह का जल्दी सिचुएशन आएगा। तो यहाँ पे पाई माइनस 5/6, आंसर तो इसका sin 5/6 भी होगा, sin 5/6, बट अब sin क्या होगा, प्लस या माइनस होगा, Plus sin 5/6 तो आंसर होगा, लेकिन quadrant. यहाँ पे मैं प्लस दूं या माइनस दूं आगे, So plus. कैसे पता चला? So sin is positive in second quadrant. ये क्या है, ऑड पाई, 1 पाई मतलब ऑड पाई, ऑड पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन क्या होता है, Positive. व्हाट इज द आंसर, 5/6, 5/6 क्या बिलोंग कर रहा है, yes, समझ में? अच्छा क्लियर हुआ या नहीं होता हो सब कुछ? Yes sir. क्लियर हो, ठीक है, एक बार कॉपी करो। Everyone solve this sum. Sin inverse of sin pi/3. Find out the value. Solve it. अब तुम लोग ये सोच में पड़ गए होंगे कि चलो 5/3 तो क्लियरली -5/2 और π/2 के बीच में नहीं, चलो ठीक है। तो तुम लोग ये सोच में पड़ गया होगा कि sin 5/3 को जब तुम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं तो पाई प्लस 2π/3 आ जाएगा, ठीक है, आ रहा है ना? अब देखो, लेकिन ऐसा करने के बाद पाई प्लस π/3 विच क्वाड्रेंट, और पाई प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है माइनस। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि यहाँ पे माइनस आ गया, तो चलो sin इनवर्स -x। अब फिर प्रॉब्लम क्या है कि sin 2π/3 वापस से उस रेट में निकलेगा, तो वापस से क्या हम sin 2π/3 को लिखेंगे, 2π/3 को क्या वापस से लिखेंगे पाई माइनस π/3, देखो तो एक बार पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं इसको, So we can simply write it as 2 pi minus pi by 6. ना लिख करके देखो क्या करेंगे, तो 5π/3 can also be written as 2π plus π/3, 2π minus π/3, it can also be written as pi plus 2π/3, बट दोनों में एंगल लीस्ट कौन सा है, दोनों में कौन सा लीस्ट एंगल है, मतलब छोटा एंगल, क्लियरली π/3, तो हम लोग उसको चूज करेंगे। नाउ व्हाट इज द आंसर, आंसर इज sin π/3। Now what is even pi minus theta, which quadrant is this, फटाफट बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन फंक्शन क्या होता है, इतना लंबा करने का जरूरत नहीं, एक बार हम लोग हमेशा जब भी इस तरह का ऑप्शन है तो जो लीस्ट एंगल है वो चूज करते हैं, अगर वो एंगल रेंज में नहीं बिलोंग कर रहा है तो हम लोग लीस्ट एंगल चूज करेंगे। What is sin inverse of -x minus sin inverse x? What is this? -5/3. -5/3 is clearly between the interval. So this is it. Alright, अब देखो तुम लोगों को करना है 1 2 3 and 4 पीडीएफ का सारा सम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ और सम जो पीडीएफ में नहीं है और जो कि एग्जाम में आएगा 100%। हम जो करा रहे हैं क्लास में वही आएगा एग्जाम में, दैट इज 100%। उसको बस नोट कर